Hello friends, welcome back to the next video of the Better Photo series. Today I'm excited because there is a lot to know and a lot to discuss. So what we are going to cover? I'm starting with the Standard 7 Geography class, Maharashtra Board again. With the second chapter, not the first chapter, how the seasons occur, we'll take it up later. But today I'm starting with the lecture known as the Sun, the Earth and the Moon. Again, I'll be using a lot of visual references, so be patient with me, watch till the end. And if you have any queries regarding this lecture, regarding this concepts on Earth and Moon, please write it down in the comments below and let me know. Okay, चलो आइए शुरू करते हैं. So firstly, मैं आपको दिखाऊंगा direct textbook, what the textbook says. Okay, so let's go to the textbook. Okay, I hope you can see. So this is what the textbook of Standard 7 looks like. Okay. So this is the cover page of Standard 7. Okay. Again, it is more or less similar to the Standard 6 cover page. Okay, it is the 2007 module, and we'll directly jump onto the index. Standard 7 geography is very, very interesting. How seasons occur, you're going to enjoy that. Sun, Moon, and Earth. Today I'm starting this. It's a part of general geography. Today I'm starting this. Okay. Tides will learn air pressure, winds, natural regions, soils. How season occur part 2. So part 1 में कुछ भी नहीं है. Part 1 बहुत छोटा सा. It's just of 3 lectures it will take according to this. And part 2 it's very lengthy. It will take 10 lectures. So part 2 is very, very interesting. You'll enjoy this. Again, we will learn from graphics and all. Okay, don't worry. Agriculture hai, human settlements hai, and then contour maps and the landforms. So today, let's begin with the second chapter: Sun, Moon, and the Earth, General Geography. Okay, let's go to the text. What the text says. Okay, chapter 2: Sun, Moon, and Earth. That directly begins with the moon's motion. The moon's motion मतलब moon का क्या revolution है, क्या path है, कैसे moon earth के side में ऐसा घूम रहा है, that we will see. And not like this, we will see like with the video again. So let's get back. Okay, so this is I'm showing you a YouTube video, a sun, earth, and moon animation. Okay, don't worry, हम और डिटेल में और पढ़ेंगे, but just ये खाली एक glimpse इसका देख लो क्या है क्या. Okay, so let's start. ये sun है, of course, the bright object. ये earth है, and this is the moon, the one which is a bit of light. Okay, start. See how the earth is spinning, and around earth the moon is spinning like this. यहाँ पे आएगा तो पता चलेगा. आप देख रहे हो अर्थ का स्पीड कितना है. अर्थ एक्चुअल में भी इतना ही फास्ट घूमता है, और एक्चुअल में इतना ही फास्ट ये मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. ठीक है, रिवॉल्व पूरा एक सर्कल लगाना उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन. अपने जगह पे ही सर्कल लगाना उसको बोलते हैं रोटेशन. ठीक है, रोटेशन ऑन द एक्सिस इज नोन एज सर्कल ऑन द एक्सिस, या फिर मूवमेंट ऑन द एक्सिस नोन एज रोटेशन. मूवमेंट अराउंड द एक्सिस, मूवमेंट ऑन द एक्सिस इज नोन एज व्हाट, रेवोल्यूशन. ये जो देख रहे हो ये पूरा ऐसा जो घूम रहा है, दिस इज रेवोल्यूशन. ओके, ये पूरा इसमें ऐसे ही चलता रहेगा. So I hope you are aware कि कैसा है. ये पूरा सोलर सिस्टम है. सोलर सिस्टम में मेरा सन है, then it is earth, then the moon which is revolving around the earth. Okay. अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पोजीशन है. ठीक है, let's go to the earth. ये अपना अर्थ है. Again, this is our earth. ये earth with one side is bright and the other side is dark. Okay, so ये side which is facing the sun is always light, and the other side is always dark. So this is earth. Okay, and the brightest object is always what, sun. Earth's singular natural satellite. Can you just see the moon's description? Earth's singular natural satellite. Earth के पास एक ही natural satellite है, which is the moon. ठीक है, ये moon है. moon आपको दिखा देते हैं. ये moon का front facing है. ये ही face we always see from Earth. ठीक है, ये वाला जो face है, the one which is dark, the one which never receives sunlight, this face या फिर this part we cannot see from the Earth. Okay,
अब ये देखो, ये धूप में रहा बेचारा, ये ऐसा क्या हो गया, काला हो गया। सो अर्थ के फ्रंट फेसिंग पे ऐसे आपको धब्बे दिखेंगे, ठीक है। हम इंसानों ने यहाँ पे भी इसके नामकरण कर दिए, आगे पहुंच गए हम, ठीक है। और ये जो ब्लैक पार्ट है ये कुछ इस तरह से दिखता है, विच इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। ये अर्थ ऐसे दिखता है, वो यू नो। नाउ यू आर कंफर्टेबल विद मून क्या है भाई, सन क्या है, अर्थ क्या है। अब डायरेक्ट टेक्स्ट पे चले, कोई टेंशन नहीं, ओके। लेट्स कट दिस ऑफ। नाउ यू कैन सी द टेक्स्ट। मून का मोशन, मून का क्या है, पाथ है क्या, रिवोल्यूशन है वगैरह, वी कैन सी। अच्छा अभी मैं बता दूं कि अर्थ जो है वो सन के आगे ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, और मून जो है वो अर्थ के आगे ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है। ओके, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, ओके दैट्स फाइन। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, मून अर्थ, अर्थ सन, ये क्लियर है। सो मून इनडायरेक्टली सन के चक्कर लगाता है, ओके। मून डायरेक्टली सन के चक्कर नहीं लगाता है, मून अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ सन के चक्कर लगाता है। तो मून इन टर्न इनडायरेक्टली मेक्स अ रिवॉल्यूशन ऑफ सन, ओके। तो ये पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है, ओके। लाइक द अर्थ, अर्थ जैसे घूमता है, मून के पास भी एक अपना एक्सिस है, एक अपना ऑर्बिटल मोशन है, ठीक है। वो सब मैं पढ़ा दूं क्या है। मून while rotating around itself revolves around the earth. मून क्या होता है, मून revolves around the earth, मून revolves around the earth, and the earth revolves around the sun. As a result, moon does not revolve around the sun independently, indirectly it makes revolution around the sun, ठीक है। as a result क्या होता है, indirectly वो sun के अराउंड ही घूम रहा है। सी, इस सोलर सिस्टम में सब कुछ सन के अराउंड घूम रहा है, सब कुछ, प्लैनेट, स्टार्स, एस्ट्रॉइड, सब कुछ, मून्स, नेचुरल सैटेलाइट जितनी भी है सबकी, सब सन के अराउंड इनडायरेक्टली घूम रहा है, बट अर्थ डायरेक्टली घूम रहा है। मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है, इन टर्न वो सन के भी चक्कर लगा रहा है। हम लोग ने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया वो कैसे होता है, ओके। तो ये एक डायग्राम है, ये अपना अर्थ है, ये मून है। तो मून ऐसे अपने ऑर्बिट पे ये चक्कर लगा, अच्छा ये जो रेड वन है दिस इज अर्थ ऑर्बिट, मतलब ऐसे अर्थ घूम रहा है और ऐसे मून। तो यू कैन सी कि एक साइड पे मून थोड़ा ऊपर है, एक साइड पे मून थोड़ा नीचे है, ठीक है। ये एंगल एक बनाता है यहाँ पे, ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक ये एंगल बनाता है, ये एंगल होता है 5 डिग्री का, ओके। ये 5 डिग्री यहाँ पे, ये 5 डिग्री यहाँ पे। तो 5 डिग्री एक साइड से थोड़ा ऊपर है और एक साइड से थोड़ा नीचे है। तो मून ऐसा ऊपर नीचे घूमता है, मून ऐसा स्ट्रेट नहीं है, मून इज लाइक दिस, ओके। तो बीच में अर्थ है, द मून इज लाइक दिस, बीच में अर्थ है तो मून इज लाइक दिस। अच्छा ये तो देख लिया कि भाई ऊपर नीचे। अच्छा अब ये साइड से देखेंगे तो दिस साइड इज वेरी नियर टू द अर्थ एंड दिस साइड इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, ओके। तो ये वाला जो नियर है और ये वाला जो फार है, इनका भी कुछ नेमिंग दिया है हम लोग ने। तो दिस नेम which is near to the earth is known as perigee, perigee, okay. And this which is far from the earth is known as apogee, okay. Near perigee, far apogee, near perigee, far apogee. Near what, near to the earth, अगर मून अर्थ के नजदीक है तो वो पेरिजी है, मून अगर अर्थ के दूर है तो वो क्या है, एपोजी। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया है, यहाँ पे 3,56,000 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या है, 4,07,000। ये समझ में आ गया। अर्थ, ये अर्थ का ऑर्बिट रेड वाला, ये मून का ऑर्बिट ऐसा है, ओके। तो मून जब सबसे ज्यादा अर्थ के ऐसा नजदीक रहेगा इट इज नोन एज पेरिजी, और मून अर्थ के सबसे ज्यादा दूर रहेगा इट इज नोन एज एपोजी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये यहाँ पे दिया है पेरिजी एपोजी, यहाँ पे फिगर 2.1 में बोला कि मून का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो मून का पोजीशन अराउंड हम लोग ने पढ़ लिया। अच्छा मून का ये क्या है, एलिप्टिकल, इसको ये जो टेढ़ा है ना, इसको ये जो टेढ़ा है इसको बोलते हैं एलिप्टिकल। एलिप्टिकल मतलब ये जो है थोड़ा थोड़ा एक्सिस पे टिल्ट है, टिल्ट। तो यहाँ पे 5 डिग्री का ये एंगल बन जाता है, मैथमेटिक्स, ओके। नाउ इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो द मून्स ऑर्बिट, ठीक है। मून का भी एक ऑर्बिट होता है, ये वाला जो है ना, ये लाइन, ये एरो, मतलब मून ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो मून का सबसे पहले फेज होता है न्यू मून, उसके बाद होता है क्वार्टर डे, उसके बाद होता है फुल मून, उसके बाद होता है वापस क्वार्टर डे। तो ये पूरा ऐसा चक्कर 1 महीने में चलते ही रहता है, इसको बोलते हैं लूनर साइकिल। क्या बोलते हैं, लूनर। तो मून के रिलेटेड जितनी भी चीजें उसको लूनर बोलेंगे, सन के रिलेटेड जितनी भी चीजें उसको सोलर बोलेंगे। दैट्स क्लियर, सन, सोलर, मून, लूनर। ये फेजेस आगे हम कैसे होता है क्या होता है डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इतना समझो, मून हैज फेजेस। ये फेजेस सन की लाइट जो मून रिसीव करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अर्थ उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है न्यू मून, दिस इज द फर्स्ट वन, देन इट कम्स क्वार्टर डे, देन फुल मून, देन इट इज अगेन क्वार्टर डे,
this is a circle which is never ending and it is repeating month wise, lunar cycle जिसको बोलते हैं. I hope this is clear. Okay, यहाँ तक ये पूरा पेज क्लियर हो चुका है. अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है, कैसे होता है. उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा. अगेन वीडियो से समझेंगे, क्लियर होगी चीजें. ये फेजेस ऑफ द मून क्यों हो रहे हैं, ठीक है. सो प्लीज पूरे वीडियो में ये देखते रहना कि क्या है, कैसे हो रहा है. मैं और समझाऊंगा डिटेल में, बट फिलहाल ये वीडियो देखो कैसा हो. दिस इज सन, दिस इज मून, दिस इज अर्थ. ठीक है, तो कैसे होगा देख लेना. ठीक है, ये फेज 1 है. सबसे पहला न्यू मून. दिस इज द फेज 1 न्यू मून. यहाँ पे न्यू मून हो रहा है. ठीक है, आगे मैं बताऊंगा. देन ऐसा मून हो रहा है, मूव हो रहा है मून. तो यहाँ पे फेज 2 होता है वैक्सिंग क्रेसेंट मून. ये सब सिलेबस में हम लोग को 4 फेज ही है. यहाँ पे 8 फेज आएंगे. वी हैव टू जस्ट स्टडी 4. डोंट वरी. ओके, ये वाला फेज नहीं पढ़ना है हम लोग को, बट स्टिल दिखा दो कैसे हो रहा है ये. ओके, नाउ सी देयर विल बी फेज 3. ये इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू रिमेंबर दिस फुल मून फेज. ओके, फुल मून फेज यू हैव टू रिमेंबर. यहाँ पे कम हो रहा है मून का साइज. ओके, now let's come back to the text. चलो, क्लियर हो गया है कैसे क्या होता है. सी वी हैव टू रिमेंबर कि ये जो मून के फेजेस है इसका प्राइमरी रिस्पांसिबल क्या है. तो प्राइमरी रिस्पांसिबल है अर्थ जो है, उसके आगे जो मून है ऐसा जो घूम रहा है, एक तो सबसे पहले वो रिस्पांसिबल है. सेकंड, सन की जो लाइट आती है वो रिस्पांसिबल. तो टू थिंग्स आर रिस्पांसिबल फॉर द फेजेस ऑफ द मून. फर्स्ट, द revolution of the moon around earth. Second, the sun's light. Clear? See, sun's never moved. सन कहीं भी घूम रहा नहीं है. सन वही है. सन की लाइट आसपास कितनी आ रही है वो इंपॉर्टेंट है फेज ऑफ द मून डिसाइड करने के लिए. ओके, सो यहाँ पे देखो, जब सन का लाइट मून पे पड़ रहा है और यहाँ पे हम अर्थ है, तो ये अर्थ का आधा हिस्सा थोड़ा लाइट हो गया और ये मून का भी ऊपर का आधा हिस्सा थोड़ा लाइट होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ साइड से सन की रेज आ रही है, ये साइड से. तो सन की रेज इस पे हुई, ये वाला लाइट हो गया. सन की रेज अर्थ पे, ये वाला लाइट. अब हम अर्थ पे, ये इंडिया है, अब हम यहाँ पे खड़े, यहाँ पे देख रहे हैं ये मून ये साइड का फेस हो रहा है, तो ये साइड तो पूरा डार्क है. तो मतलब मुझे मून दिखेगा नहीं. ठीक है, मून दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ भी मून नहीं. और ये वाला होता है 0 डिग्री. तो 0 डिग्री पे होता है न्यू मून डे. 0 डिग्री मतलब क्या? अर्थ, मून और सन दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, तब होता है न्यू मून डे. क्योंकि मेरे को अर्थ से यहाँ पे मून दिख ही नहीं रहा, तो अब जो भी मून आएगा वो न्यू मून होगा. ठीक है, आई एम नॉट एबल टू सी moon from here because it is totally dark, because it is receiving sunlight at the other end, and hence I am terming the moon as a new moon day because I am not able to see the moon itself. Okay, once the moon I am able to see, it is known as new moon day and it is at 0 degree. And then it again revolve. ऐसा रिवॉल्व हुआ तो मुझे आधा दिखने लगा, क्योंकि अब यहाँ की सनराइज यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ से मुझे थोड़ा आधा दिख रहा है. ठीक है, अगेन ये ऐसे जा रहा है. अब ये 180 डिग्री हो गया, मतलब मून यहाँ पे हो गया, मतलब मून यहाँ पे हो गया. अब मून मुझे पूरा दिख रहा है. सी, अब मैं यहाँ पे अर्थ पे हूँ, अब मुझे मून यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा दिख रहा है, क्योंकि सन की रेस मून पे डायरेक्ट आ रही है. तो आई एम एबल टू सी दी फुल मून डे. ठीक है, मैं पूरा मून देख पा रहा हूँ, फुल मून. फिर वापस ये इधर जाएगा, फिर मैं वापस इसको आधा मून देख पाऊंगा. तो अर्थ भी साथ साथ में रोटेट कर रहा है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड मून भी उसके आगे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. सो अर्थ का रोटेशन, मून का रिवॉल्यूशन, सन की लाइट, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं भाई, फेजेस ऑफ द मून. तो फेजेस ऑफ द मून क्या है, हम लोग को 4 ही पढ़ने. न्यू मून, जब लाइट उसके दूसरे साइड पड़ती है और मुझे अर्थ से कुछ भी नहीं दिखता, तो उसके बाद जब वो निकलेगा तो वो नया मून होगा. फिर होता है क्वार्टर डे, जो वैक्सिंग मून है. वैक्सिंग मतलब थोड़ा सा दिख रहा है ज्यादा. उसके बाद फुल मून आ जाता है.
मतलब पूरा दिख रहा है क्योंकि फुल लाइट पड़ रही है उसके ऊपर, और उसके बाद वैनिंग मून दिखता है और वो क्वार्टर डे होता है वैनिंग मून। तो क्वार्टर डे वो 90 डिग्री पे होते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ये 0 डिग्री में न्यू मून डे होगा, 180 डिग्री में क्या होगा, फुल मून डे। यू हैव टू रिमेंबर 180 डिग्री फुल मून डे, 0 डिग्री न्यू मून। ओके, न्यू मून डे में क्या हो रहा है, सन मून और अर्थ तीनों क्या हो रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है। बट फुल मून डे में क्या हो रहा है, सन अर्थ और मून, यहाँ पे मून बीच में नहीं है, यहाँ पे अर्थ बीच में आ रहा है इन फुल मून डे। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये सब काम आएगा आगे। ओके, क्लियर है ये? आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलो वापस देखते हैं आगे। We see the phases of the moon in the sky from the earth. ठीक है, they are illuminated मतलब जहाँ पे लाइट पड़ रही है, जहाँ पे प्रकाश आ रहा है। ओके, they are illuminated portions of the moon. जो मैं देख रहा हूँ मून, वो क्या है, illuminated. See, स्पेस क्या है, पूरा डार्क है, जब तक कोई लाइट नहीं आएगी मैं कुछ भी चीज नहीं दिख सकता। एंड सन क्या है, बहुत सारी लाइट एमिट कर रहा है, एंड दैट्स द रीजन आई एम एबल टू सी दी मून, बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट। ओके, they became visible. They became what, visible? Why visible? Because the sun's rays are falling on the moon, on the earth, etc. They become visible due to the sunlight reflected from the moon. See, moon का अपना कोई लाइट नहीं है, there is nothing called as moonlight. Okay, moon का लाइट आता है but it is just a reflection. अब मैं यहाँ से एकदम टॉर्च लगा रहा हूँ, तो टॉर्च अगर यहाँ पे आएगी तो वो नीचे आएगी ना वापस, so it will reflect. So ये sun है और ये है, तो यहाँ पे it will what, it will reflect. So moon doesn't have any light as such, but it's just a reflection of what, sunlight. Okay. Okay. The moon, while revolving around the moon is on the opposite side of the sun on a full moon day. ठीक है, सन के अपोजिट साइड में कब रहेगा, फुल मून डे। तो ये है सन, सन के ये साइड में नहीं है, सन के अपोजिट साइड में है, इसके लिए वो क्या है, फुल मून डे। सन के अपोजिट साइड में फुल मून डे, तो यहाँ पे ये लिखा है, द मून इज ऑन द अपोजिट साइड ऑन द फुल मून डे, whereas on a new moon day it is positioned between the sun and the earth. न्यू मून डे के वक्त क्या हो रहा है भाई, मून सन और अर्थ के बीच में। न्यू मून डे के वक्त क्या हो रहा है, मून सन और अर्थ के बीच में। यू हैव टू रिमेंबर दिस पोजीशन, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिग्री भी 0 डिग्री 180 डिग्री आपको याद करनी है। सन और मून की पोजीशन क्या है वो याद करना है, सन की पोजीशन आपका सेम रहेगी, अर्थ एंड मून की पोजीशन क्या है वो याद करना है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब तक हमने क्या पढ़ा भाई, अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम लोग ने ये पढ़ा कि मून के पास अपना एक ऑर्बिट है, मून अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है, वो ऑर्बिट थोड़ा 5 डिग्री ऐसा टिल्ट है, दिस इज ऐसा। ठीक है, ये मून का ऐसा एक्सिस है, वो एक्सिस पे घूमता है ऐसे ऐसे अर्थ। ठीक है, और मून के हमेशा एक ही हिस्से पर लाइट आती है, जैसे अर्थ के हमेशा एक ही हिस्से पर लाइट आती है। अर्थ की भी हमेशा आधा ही लाइट में रहता है, एक जगह रात एक जगह दिन, जैसे इंडिया में दिन है तो अमेरिका में क्या होगी, रात होगी। वैसे ही सन में भी एक हिस्से में ही लाइट आती है, पीछे के हिस्से में लाइट नहीं आती। ये हम लोग ने पढ़ा। जब मून एकदम सबसे नजदीक रहेगा उसमें बोलता है पेरिजी, मून सबसे दूर रहेगा उसमें बोलता है एपीजी, और ये 5 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट। फिर फेजेस ऑफ द मून पढ़ा, फेजेस ऑफ द मून क्यों बन रहे हैं, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द मून एंड ड्यू टू द सनलाइट, ड्यू टू द सन रेज। ओके, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि भाई फेजेस ऑफ द मून क्या है, तो एक तो है न्यू मून डे, उसके बाद वैक्सिंग, उसके बाद फुल मून डे, उसके बाद वैनिंग। ओके, न्यू मून डे 0 डिग्री, मून बीच में होता है सन अर्थ के। वैक्सिंग मून, यहाँ पे थोड़ा मून मुझे ज्यादा दिखने लगता है। फुल मून डे फुल मून दिखने लग जाएगा क्योंकि फुल लाइट यहाँ से आ रही है, मैं अर्थ से पूरा मून देख सकता हूँ, और ये अपोजिट साइड ऑफ द सन रहता है, एंड इट्स ऑन दी 180 डिग्री, और ये 90 डिग्री पे क्वार्टर डे, और ये वैनिंग मून। ओके, तो एंगल्स बनाता है भाई अर्थ मून सन। ठीक है, ये एंगल्स मैंने पढ़ लिया, 0 डिग्री 180 डिग्री का एंगल हो गया। अब उसके बाद आता है एक्लिप्सिस। ओके, एक्लिप्सिस वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अब एक्लिप्सिस के लिए ना सबसे पहले एक ग्राफ बना लो, टॉप में लिखना एक्लिप्सिस, नीचे लिखना सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। एक्लिप्स, सोलर, लूनर, मतलब दो टाइप ऑफ एक्लिप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्सिस, वन इज सोलर एंड सेकंड इज व्हाट, लूनर एक्लिप्स। Solar eclipse are also of two types. One is total solar eclipse and second is partial solar eclipse. ये भी मैं पढ़ाऊंगा, but you just have to make graph. Lunar also again two types, total lunar and the partial lunar. So total solar, partial solar, total lunar, partial solar. तो टोटल 4 टाइप के एक्लिप्सेस है। फिर एक और आता है बोनस में, वो होता है एनुअल सोलर एक्लिप्स। ठीक है,
वो भी सोलार। तो सोलार के अल्टीमेटली 3 है और लूनार के 2, 3 और 2, 5 एक्लिप्सेस टोटल में आपको यहाँ पे डिस्कस करने। इट्स वेरी वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस कि क्या होता है एग्जैक्टली, कौन किसके बीच में और किसका लाइट कहाँ पे आ रहा है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, यहाँ पे 3 ही कैरेक्टर होंगे, सन, अर्थ और मून। अगेन वो चैप्टर का नाम है सन, अर्थ और मून। यहाँ पे कोई भी फोर्थ कैरेक्टर नहीं होगा, तो ये 3 कैरेक्टर ही आपस में इधर उधर जाएंगे। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर किसका लाइट किस पे आ रहा है और उस वजह से क्या एक्लिप्स हो रहा है। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्लिप्स से क्वेश्चंस आते ही है। ओके, चलो अब ये वापस पढ़ रहा हूँ मैं एक्लिप्सेस। द ऑर्बिटल पाथ ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो ऑर्बिट है, एंड दैट ऑफ द मून, और जो मून का ऑर्बिट है, वो सेम प्लेन पे नहीं है। अभी आपने देखा कि भाई यह मून का ऑर्बिट है और ये अर्थ का ऑर्बिट है, सेम प्लेन पे नहीं है, क्योंकि मून का ऑर्बिट ऐसा है, ठीक है, मून का ऐसा है और अर्थ का सिंपल है ऐसा, समझ, मून ऐसा अर्थ ऐसा, तो वो दोनों सेम प्लेन पे नहीं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस लाइन इज रिटन, आई विल से यू। ओके, तो दोनों का समझ गया, अर्थ का ऑर्बिट मून का ऑर्बिट सिंपल। The moon revolutionary orbit makes an angle of about 5 degree with that of the earth. Moon का जो है एंगल वो 5 डिग्री बनाता है, I have already told you. As a result, इस वजह से very very important, 5 डिग्री का एंगल बनाता है, it's very very important. The moon intersects the planet Earth orbit twice during one revolution. It's very very important line. Moon 5 डिग्री का एंगल बनाता है अर्थ के ऑर्बिट पे, it's very very clear. उसके बाद जब वो रिवॉल्व कर रहा है, कौन, मून, किसका रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ का। तो मून जब अर्थ का चक्कर लगा रहा है ऐसा ऐसा, तो वो 2 बार अर्थ के एक्सिस को टच करता है ऐसे। ये फर्स्ट वाला इधर टच करेगा, सेकंड वाला इधर टच करेगा। तो देख लो, और बाकी कहीं भी अर्थ के एक्सिस पे टच नहीं हो रहा है, फर्स्ट यहाँ पे टच हो रहा है और सेकंड यहाँ पे टच हो रहा है। तो मून अर्थ के जब चक्कर लगाता है, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, इट कट्स ट्वाइस द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ठीक है, 2 बार अर्थ के ऑर्बिट को मून इंटरसेक्ट करता है और ये 5 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये मून का पाथ, और ये अर्थ ऐसा ऐसा घूम रहा है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। द मून इंटरसेक्ट्स द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट ट्वाइस ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन। एक बार घूमेगा, 2 बार काटेगा, एक बार घूमेगा, 2 बार काटेगा। समझ में आया? तो ऑन ईच न्यू मून डे एक बार काटेगा, ठीक है, on each new moon day the lines joining the earth and the sun and the moon make an angle of 0 degree, whereas in each full moon day this angle is 180 degree. See, very very easy है। अर्थ का जब चक्कर लगा रहा है मून, अर्थ के एक्सिस को वो 2 बार काटेगा, एक रिवोल्यूशन में 2 बार, ठीक है, एक न्यू मून डे पे काटेगा और एक फुल मून डे पे काटेगा। न्यू मून डे, फुल मून डे, 2 बार मून अर्थ के एक्सिस को काटेगा, सिंपल है। भले ही even so the sun, earth and moon may not be in one straight line, ठीक है, भले ही अर्थ, मून और सन स्ट्रेट लाइन में नहीं हो, कैसे नहीं होंगे, देखो सन तो भाई अपना चुपचाप खड़ा है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है सन को। अर्थ उसके यहाँ पे ऐसे सीधे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, अर्थ सीधे चक्कर लगा रहा है, लेकिन मून टेढ़ा है, मून ऐसे है, अर्थ ऐसे है, मून ऐसे है, तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। आते हैं स्ट्रेट लाइन में, वो कब कब आते हैं और उस वक्त क्या क्या होता है वो अभी पढ़ने वाला है। तो रेगुलरली वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, बट जब आते हैं तो देयर इज वन फिनोमिना, उसको ही बोलते हैं एक्लिप्स। आगे पढ़ते हैं वो क्या। भले ही वो अर्थ सन मून एक ही लाइन पे नहीं है और सेम प्लेन पे नहीं है, ओके, बट एवरी न्यू मून और फुल मून डे ऐसा होता है, ठीक है, हेंस एक्लिप्सेस डू नॉट अकर ऑन ईच न्यू मून एंड फुल मून डे। ठीक है, देखो मून जब न्यू मून डे होता है तो यहाँ पे आ जाता है, तो एक टाइम पे तो वो सामने आ जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों एक ही लाइन में हो। ठीक है, मून इज बाइसेक्टिंग, इज इंटरसेक्टिंग द अर्थ ऑर्बिट, but that does not mean the sun, earth and moon are in a straight line always, ठीक है, sometimes it happens, but जब भी होगा वो होगा न्यू मून डे या फिर फुल मून डे पे, क्योंकि तभी ही तो अर्थ के एक्सिस को वो काटता है मून। ठीक है, न्यू मून डे और फुल मून डे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब वैक्सिंग और वैनिंग में कुछ नहीं हो सकता। तो जब फुल मून डे होगा और न्यू मून डे होगा तभी देखो ये स्ट्रेट लाइन में, न्यू मून डे, full moon day, straight line. Okay. However, sometimes on a new moon day or a full moon day, the three fall in one line and are in the same place. Sometimes, you have to very important word. Remember this word.
कि समटाइम्स सन, मून और अर्थ सेम लाइन पे आ जाते हैं। क्लियर है? सिंपल है। लास्ट में मैं समरी दूंगा, बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और समटाइम्स बच्चों को समझने डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वीडियो दिखा दिया, सो दैट यू कैन इमेजिन किया हुआ भाई ऐसा होता है। अदरवाइज जो टेक्स्ट पढ़ते रहे, ज्योग्राफी को देखा नहीं, मैप देखा नहीं, सोलर सिस्टम देखा नहीं, तो यू कैन नॉट लर्न ज्योग्राफी। ठीक है, इसलिए मैं टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप लोग को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज सपोर्ट अस। नाउ कमिंग बैक, तो जब वो सेम प्लेन पे आते हैं तब वो होते हैं एक्लिप्सिस। जब तीनों ही सेम प्लेन पे, सन, मून और अर्थ सेम लाइन पे सेम प्लेन पे आ जाएंगे, तब क्या हो जाएगा भाई? एक्लिप्सिस। ठीक है, तो एक्लिप्स दो तरह के हो सकते हैं। एक्लिप्सिस में बी ऑफ टू टाइप्स, सोलर और लूनर। एक्लिप्स दो तरह के होते हैं, सोलर और लूनर। आगे बढ़ते हैं। तो सोलर एक्लिप्स कब होता है और लूनर एक्लिप्स कब होता है? सिंपल है, काफी सिंपल है, आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये डायग्राम पढ़ा देता हूँ। ये डायग्राम है टोटल सोलर एक्लिप्स का, टोटल पार्शियल बात है। तो सोलर एक्लिप्स में आपको ये ध्यान रखना है, ये सन है, मून है और अर्थ। तो सोलर एक्लिप्स हमेशा कब होगा? जब मून सेंटर में होगा अर्थ और सन के। जब मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के, तो वो क्या होता है? सोलर एक्लिप्स। ठीक है, अब वो कैसे क्या होता है मैं बताता हूँ। But when moon comes into the center, comes in between the earth and sun, it is known as what? Solar eclipse. और lunar eclipse देख लो, lunar eclipse क्या होता है? lunar eclipse ये होता है जब अर्थ, सन और मून के बीच में आ जाता है। लूनार एक्लिप्स जब अर्थ, सन और मून के बीच में आ गया। सोलर एक्लिप्स जब मून, सन और अर्थ के बीच में आता है। सिंपल है, ये दोनों डिफरेंशिएट हुआ क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सोलर एक्लिप्स क्या है? If the moon is between the sun and the earth, the shadow of the moon falls on the earth. सिंपल है भाई। अगर मून बीच में है सन और अर्थ के, तो सन तो लाइट भेज रहा है, और मून का भी थोड़ा बहुत जो ये यहाँ पे लाइट आ रहा है वो गिर रहा है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है? ये शेडो गिर रहा है। ये दिस लाइन विच यूज कलरिंग इज व्हाट इज नथिंग बट द शेडो ऑफ द मून। तो ये जो सन का पीछे से लाइट घूम रहा है, तो उसका मून पे आने के बाद वो टकरा रहा है, और टकराने के बाद अर्थ पे मून का शेडो गिर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? सोलर एक्लिप्स। ठीक है, एक्चुअली क्या है? वो लाइट किसकी है? सन की, और सन के साथ हमेशा क्या होता है? सोलर, इसलिए वो क्या होगा? सोलर एक्लिप्स। ठीक है, तो जब ये जो पूरा ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे पूरा 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 ऐसा देखेंगे कि भाई सन का लाइट पूरा छुप गया, इट्स कम्प्लीटली डार्क, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा शेडो आ रहा है, और वहां पे ऐसा लगेगा सन देख ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि मून बीच में आ गया, और ये सन का सिर्फ हम लोग को आउटर हिस्सा ही देखने मिलता है, तो इसको मैं बोलता हूँ टोटल सोलर एक्लिप्स। सिंपल है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एरिया से अगर मैं देखूंगा, तो मून मेरे को थोड़ा आधा दिखेगा और सन भी मेरे को दिखेगा, तो मून थोड़ा आधा दिखेगा और सन भी मेरे को दिखेगा, इसलिए यहाँ पे होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, जगह जगह का फर्क है। इफ आई सी फ्रॉम हियर, आई विल रियलाइज के भाई इट इज टोटल सोलर एक्लिप्स। इफ आई सी फ्रॉम हियर, ये वाला पॉइंट से, तो आई रियलाइज इट इज पार्शियल सोलर एक्लिप्स। तो एक ही टाइम पे दो अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें मिल सकती है। एक टाइम पे आपको मिलेगा भाई क्या, ये एक जगह से मिलेगा कि भाई ये टोटल सोलर एक्लिप्स है, दूसरी जगह से यू विल फाइंड इट इज व्हाट? पार्शियल सोलर। सिंपल है। जब मून अर्थ सन के बीच में आ जाता है तो वो सोलर एक्लिप्स होता है, क्योंकि सन का लाइट मून के थ्रू अर्थ पे आता है और उसका शेडो जैसा। और जहाँ पे कम्प्लीटली डार्क पोर्शन आता है, ये वाला दिस एरो पॉइंट, जहाँ पे कम्प्लीटली डार्क हो जाता है, एकदम डार्क हो जाता है, पूरा अंधेरा अंधेरा, तो इट इज व्हाट? टोटल सोलर एक्लिप्स। वो जगह से आपको सन दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा तो भी सिर्फ आउटर पोर्शन इतना ही दिखेगा। But if you see sun from here, you can see sun. You can see the half portion of the moon, and that's why it is known as what? Partial solar eclipse. एक ही जगह से देखेंगे तो दो अलग अलग चीजें मिलेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग, सदर्न हेमिस्फीयर में अलग। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ में यही था। यू हैव टू रीड आल्सो एट होम, तभी जाके चीजें क्लियर होगी। ठीक है, चलो। अब उसके बाद आता है एनुअल सोलर एक्लिप्स। मैंने बोला था सोलर के तीन है, एक टोटल एक पार्शियल। ये तो मैंने क्लियर कर दिया। टोटल में क्या कंप्लीटली डार्क हो जाता है, सन का सिर्फ आउटर सरफेस दिखेगा, और पार्शियल में क्या होता है? सन दिखता है और मून भी थोड़ा दिखता है, दोनों दिखते हैं, तो होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स। अब तीसरा एक आता है एनुअल सोलर एक्लिप्स। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनुअल सोलर एक्लिप्स। देखो अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब
मून अर्थ के सबसे नजदीक होता है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, और मून जब सबसे दूर होता है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ. तो हैव टू अगेन गो बैक टू दिस एंड रिमेम्बर कि मून जब सबसे नजदीक है तो वो है पेरिजी, और मून जब सबसे दूर है तो वो होता है एपोजी. सिंपल है. तो यहाँ पे देखते हैं, तो एनुअल सोलर एक्लिप्स है एपोजी का कॉन्सेप्ट. तो समटाइम्स क्या होता है, मून एपोजी की पोजीशन में आता है. ठीक है, ऐसा घूम रहा है तो एक जगह से थोड़ा कम घूमता है और एक जगह से थोड़ा ज्यादा घूमता है. तो सपोज ये बीच में ये है अर्थ, तो यहाँ से मून घुमा इतना और ये एक साइड से इतना घूम के आएगा, और यहाँ से कम घूमेगा इतना ज्यादा घूम के आएगा. सो टू अंडरस्टैंड जब मून ज्यादा दूर होता है इट इज नोन एज व्हाट, एपोजी. समटाइम्स द मून इज इन एपोजी पोजीशन. ये देखो मून यहाँ पे दूर है और यहाँ पे मून थोड़ा नजदीक है, यहाँ पे पूरी लाइट आ रही है, यहाँ पे देखो मून थोड़ा दूर है इसलिए लाइट आ ही नहीं रही. So sometimes the moon is in apogee position. This means it is at its farthest from the earth. Earth से सबसे ज्यादा वो दूर है, उससे ज्यादा दूर कभी मून होता नहीं. तो जब से farthest point आता है it is known as what, apogee. तो उस वजह से क्या होता है कि ये जो लाइट है ना, लाइट वो अर्थ तक पड़ ही नहीं रही. ठीक है, अर्थ तक एकदम थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, या तो नहीं एकदम ना के बराबर लाइट पड़ रही है, जो अर्थ शेडो आ रहा है दैट इज नॉट कंप्लीट शेडो. तो एज अ रिजल्ट द डीप शेडो ऑफ द मून इज कास्ट इन स्पेस एंड डज नॉट रीच द अर्थ. वो स्पेस में ही घूम जाती है, उसकी शेडो जो रहती है इट गोज इन स्पेस ओनली, अर्थ तक आती ही नहीं क्योंकि मून काफी दूर है, तो लाइट आने को भी टाइम लगता है. डू यू नो कि भाई सन का जो लाइट है वो अर्थ पे आने 8 मिनट लगता है. 8 मिनट्स. सोचो कितना दूर होगा सन. सन जो इतना बड़ा है, इतनी सारी लाइट है, पूरे सोलर सिस्टम को लाइट देता है वो. सो इन दैट सिनेरियो अर्थ पे दैट सनरेज 8 मिनट के बाद पहुंचती है. तो अगर ऐसा हो कि कभी किसी ने सन को हटा दिया सपोज, ठीक है एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अर्थ पे 8 मिनट तक लाइट फिर भी रहेगी, उसके बाद पूरा अंधेरा होगा. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो जब मून भी दूर रहता है, तो मून भी काफी दूर है ऐसे, तो जब मून भी दूर रहता है तो इन दैट सिनेरियो उसका लाइट जो है प्रॉपर आता ही नहीं है अपने पास. इन दैट सिनेरियो वो लाइट सारा क्या होता है, स्पेस में ही चले जाता है. तो वेरी स्मॉल रीजन से ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा लाइट आया, थोड़ा सा सोलर एक्लिप्स हुआ, तो वो रीजन से ऐसा कुछ दिखता है कि मून पूरा या लाइट पूरा आ गया, और थोड़ा सा ये जो ये डिस्क जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली सन. I hope you're seeing. From a very small region of the earth, only an illuminated edge of the sun disk is seen from the ring. ये रिंग जैसा बन जाता है और लाइट पूरी कुछ आती ही नहीं. So this ये annual solar eclipse. Okay, annular solar eclipse. This is called annular eclipse. Okay, figure 2.6 इसमें देख. तो annular eclipse बहुत कम होता है. It's very very rare phenomena. हमेशा क्या होता है, या तो टोटल होगा या तो पार्शियल होगा. तो एक ही वक्त पे किसी एक जगह को टोटल दिखेगा, किसी एक जगह को पार्शियल दिखेगा. बट एन्युलर एक्लिप्स काफी काफी रेयर फिनोमेना है, ये नहीं होता है, बहुत कम होता है. ओके, लूनर एक्लिप्स मैंने बता दिया. लूनर एक्लिप्स कब होता है, जब मून एंटर्स द शैडो ऑफ द अर्थ. इसका मतलब क्या है भाई, अर्थ बीच में आ जाता है, सन यहाँ पे रहता है और मून यहाँ पे, तो सन का लाइट अर्थ पे पड़ता है और अर्थ उसका शैडो कहाँ पे जाता है, मून पे. लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून एंटर्स द शैडो ऑफ द अर्थ. मून पे जब अर्थ की शैडो गिरने लगती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सन है, तो सन का रेज इस पे गिरा अर्थ पे, और अर्थ का रेज किस पे गिर रहा है, मून पे. सो इन दैट सिनेरियो अर्थ का शैडो किस पे गिरेगा, मून पे. ऐसा होता है ना, किधर भी लाइट मारो तो उसका शैडो गिरता ही दूसरी जगह. सो इन दैट सिनेरियो लूनर एक्लिप्स अकर्स when the moon enters the shadow of the earth. इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल शब्दों में अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द मून. सन यहाँ पे, मून यहाँ पे, अर्थ है बीच में. ओके, at this time it is necessary that earth is between the sun and the moon. ठीक है, लूनर एक्लिप्स होने के लिए क्या नेसेसरी, अर्थ बीच में रहे, बिटवीन सन एंड द मून, एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर इन सेम प्लेन. सी सेम प्लेन में रहेंगे ना भाई, तभी जाके एक्लिप्सेस होता है. एक्लिप्सेस अगर सन यहाँ पे, मून यहाँ पे और अर्थ यहाँ पे, तो एक्लिप्स नहीं हो सकता, वो ट्रायंगल बन जाएगा, एक्लिप्स नहीं होता. एक्लिप्स कब होगा, जब तीनों चीज सेम रहेंगी. हाँ, पोजीशन इधर उधर हो सकती है, बट व्हेन थ्री आर इन द सेम प्लेन, आर इन द सेम प्लेन, देन द एक्लिप्सेस अकर. ठीक है, इट्स वेरी रेयर फिनोमेना कि एक्लिप्सेस होते हैं ऐसे 3-4 साल में, 5-10 सालों में एक एक बार हो जाते हैं, बट इट्स वेरी वेरी रेयर फिनोमेना, हर महीने देखने नहीं मिलेगा. ओके, तो फुल मून डे the moon's path of revolution passes through thick shadow of earth. जब फुल मून डे होता है, वापस जाते हैं यहाँ पे फेस में, जब फुल मून डे होता है सबसे ज्यादा अर्थ का शेडो इस पे आता है, सबसे ज्यादा. व्हेन इट इज फुल मून डे तो सबसे ज्यादा अर्थ का शेडो इस पे आ गया, और तब वो होता है क्या, लूनर एक्लिप्स. ओके बॉस, आई होप इट इज क्लियर. हर बार नहीं होगा ये, जब ये तीनों सेम लाइन सेम प्लेन पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे सेम लाइन में आ जाएंगे,
तभी होता है वो, हर बार लूनर एक्लिप्स नहीं होगा। अदरवाइज तो क्या होता है, वो हर महीने चक्कर लगा रहा है सन, मून हर महीने चक्कर लगा रहा है अर्थ के, तो हर महीने होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, हर महीने नहीं होता है। कब? क्योंकि वो ऐसा है, टेढ़ा है, और अर्थ ऐसा सीधा है, तो टेढ़े और सीधे को एक लाइन पे आने के लिए टाइम लगता है, एंड इट हैपेंस। आई होप इट इज क्लियर। ये लूनर एक्लिप्स है, अर्थ बीच में आ गया तो मून के ऊपर टोटल लूनर एक्लिप्स, जब पूरा शेडो पड़ जाता है तो टोटल आधा शेडो पड़ेगा, तो इट इज पार्शियल लूनर एक्लिप्स। सिंपल, ये पार्शियल लूनर एक्लिप्स का जैसे आधा मून दिख भी रहा है और आधे मून पे क्या आ गया, शेडो आ गया। आई होप इट इज वेरी वेरी सिंपल। यहाँ तक एक्लिप्सेस क्या होते हैं, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे एकदम स्टार्टिंग पे आया सन मून अर्थ स्टार्ट किया था। मून क्या होता है, रिवॉल्व करता है किसके, अर्थ के। अर्थ किसके रिवॉल्व करता है, सन के। तो मून इनडायरेक्टली रिवॉल्व कर रहा है किसके, सन। मून डायरेक्ट रिवॉल्व नहीं करता सन के, मून इनडायरेक्ट रिवॉल्व करता है सन के। मून का ऑर्बिट थोड़ा ऐसा एलिपिसेटेड है, ठीक है, एलिपिसेटेड बोलते हैं, एलिप्टिकल बोलते हैं उसको। अर्थ से वो 5 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनाता है, और वो अर्थ के ऑर्बिट को ट्वाइस इंटरसेक्ट करता है 1 रेवोल्यूशन में। मून एक रेवोल्यूशन में इट इंटरसेक्ट्स व्हाट, अर्थ ऑर्बिट ट्वाइस। ओके, अच्छा, जब वो क्लोजेस्ट रहेगा मून के, ये क्लोजेस्ट रहेगा मून के, तो वो क्या होता है, पेरिजी, और फर्देस्ट रहेगा तो वो क्या होगा, एपोजी। पेरिजी क्या होगा, क्लोजेस्ट, फर्देस्ट क्या होगा, एपोजी। आई होप इट इज क्लियर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थ का रेवोल्यूशन है, अर्थ का रेवोल्यूशन रोटेशन दोनों है, मून का रेवोल्यूशन है, मून सिर्फ घूमता है, मून ऐसा ऐसा घूम के नहीं जाता। सी अर्थ कैसे ऐसा 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 ऐसे करके जाता है, मून ऐसा ऐसा जाता है। ओके, तो जब ऐसे ऐसे जाता है दैट इज नोन एज रिवोल्यूशन, ऐसे 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 जाता है वो नोन एज रोटेशन। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट हैपेंस, देयर इज अ फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून क्यों हो रहा है, क्योंकि सन की रेज पड़ रही है एक पार्ट पे और एक पार्ट पे नहीं पड़ रही, तो वी कैन सी हाफ ऑफ द पोर्शन, और समटाइम्स यू कैन सी द फुल पोर्शन, समटाइम्स यू कैन नॉट सी द मून इटसेल्फ। मून ऐसा लगता है गायब ही हो गया स्पेस में, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, वो स्पेस में होता है, बट जस्ट वी कैन नॉट सी बिकॉज बहुत अंधेरा है, स्पेस इज वेरी 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 डार्क। वो कब देखूंगा मैं, जब सन की रेज उस पे आएगी तब। तो 4 फेजेस हम लोग को पढ़ना है। न्यू मून होता है, उसके बाद होता है वैक्सिंग, उसके बाद होता है सिर्फ मून, फुल मून, यहाँ पे होगी न्यू मून, उसके बाद होगी वैक्सिंग, फिर फुल मून के बाद वेनिंग, वापस ऐसा ऐसा चलता रहता है, इट हैपेंस। तो इसको बोलते हैं लूनार साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, लूनार साइकिल। आई होप यू आर कंफर्टेबल। उसके बाद मैंने पढ़ा था एक्लिप्सिस। एक्लिप्सिस क्या है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, ठीक है, ये कोई मतलब ऐसा अजूबा नहीं है, इट्स जस्ट एस्ट्रोनॉमी, इट्स साइंस। साइंस की वजह से होता है ये, कि भाई साइंस ने इसको फाइंड आउट किया कि ये क्या चीज है एग्जैक्टली। सो इट इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ सन मून एंड अर्थ। एक्लिप्स क्या है, पोजीशन ऑफ सन मून एंड अर्थ, जब वो तीनों एक लाइन में आ जाता है। हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, मून और अर्थ अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, सन रिमेन्स वेयर इट इज, but when all three comes in a one plane, one line, straight line, then it is known as what, eclipses. So depending on eclipses क्या होगा, वो सोलर हो सकता है, लूनर हो सकता है। सोलर कब होगा भाई, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा। ये सन है, ये अर्थ है, और ये मून है, मून है, जब मून सन और अर्थ के बीच में रहेगा देन इट इज व्हाट, सोलर एक्लिप्स। ठीक है, पार्शियल हो सकता है, टोटल हो सकता है, एक ही जगह पे पार्शियल भी दिख सकता है, एक ही जगह पे टोटल भी दिख सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, आप कहाँ हो। अगर आप नॉर्दर्न में हो और सदर्न में हो, अलग अलग आपको दिखे। फिर एक होता है एनुअल सोलर एक्लिप्स। एनुअल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है भाई, सन एक रिंग के फॉर्म में ही दिखता है, सन लुक्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग, क्योंकि पूरा का पूरा डार्क हो जाता है और स्पेस में लाइट चली जाती है। मून इससे इतना दूर रहता है, अपोजिट पोजिशन में रहता है, एंड सिर्फ मुझे सन का एक का दिखता है, रिंग दिखता है। लूनार में भी ऐसा ही है, दो चीजें हो सकती है, एक टोटल और एक पार्शियल। टोटल में क्या, जब अर्थ का शेडो, अर्थ बीच में रहता है लूनर में, और सन और मून यहाँ पर, तो जब अर्थ का शेडो मून पे गिरता है और वो टोटल गिर जाता है, कुछ भी नहीं दिख रहा है मून, सो इन दैट सिनेरियो, मतलब पूरा शेडो दिख रहा है, सो इन दैट सिनेरियो वो क्या होगा, टोटल। और जब पार्शियल दिखेगा तो क्या होगा, पार्शियल। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। काफी अच्छे से जा रहे हैं, गुड गुड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्लिप्स क्या है भाई, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, इट्स अ साइंस थिंग। ये कोई ऑस्पिशियस या फिर इनऑस्पिशियस या फिर कोई अजूबा या कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं होती, ये ना ही अच्छी है, ये ना ही बुरी है, ये जस्ट अ साइंस थिंग। ठीक है, हम साइंस की तरफ से तो इट इज, ये होता कि इट्स रिजल्ट ऑफ द सन अर्थ एंड द मून बीइंग इन द स्पेसिफिक पोजीशन। अर्थ सन की स्पेसिफिक पोजीशन होती है, तो ये होगा, ये हो गया। अच्छा, आप लोगों को अगर सोलर एक्लिप्स देखना है तो भाई ऐसे ही नहीं देखना, आगे गॉगल्स वगैरह पहनना, क्योंकि जब सन की रेज डायरेक्ट पड़ेगी तो इट्स वेरी वेरी हार्मफुल, ये प्रूवन है। ओके, तो कोई भी अगर सन को देखना चाहता है तो वो गॉगल्स पहने सोलर एक्लिप्स के वक्त। ओके, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोलर एक्लिप्स लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एनिमल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सब बाद में पढ़ेंगे।
उसके बाद दो और कॉन्सेप्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे 5-10 मिनट और लगेगा, 5 मिनट, प्लीज पे अटेंशन। ओके, चलो, आई वांट योर ऑल योर अटेंशन नाउ। डू यू नो में दो कॉन्सेप्ट और पढ़ने हैं हम लोग, एक तो होता है ऑक्यूल्टेशन और दूसरा होता है ट्रांजिट। ठीक है, वेरी वेरी इजी। ऑक्यूल्टेशन है, ऑक्यूल्टेशन, और दूसरा होता है ट्रांजिट। ऑक्यूल्टेशन क्या होता है भाई? ऑक्यूल्टेशन ये होता है, डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, लाइक एक्लिप्सिस सम अदर स्पेसिफिक कंडीशंस अकर विद रेफरेंस टू द सन और द मून। एक्लिप्सिस की तरह ही ये ऑक्यूल्टेशन और ट्रांजिट भी है, पढ़ते हैं क्या? तो दीज आर कॉल्ड ऑक्यूल्टेशन एंड ट्रांजिट। तो ऑक्यूल्टेशन क्या है? दिस इज अ टिपिकल इवेंट occurring in space. The moon revolves around the earth. While doing so, आपको तो पता है कि मून रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ। तो पानी ब्रेक लेते हैं। ये सैनिटाइजर है, वो यूज करते रहना है, बाबा जी का प्रसाद लेते रहना, ठीक है, जब तक चीजें नॉर्मल नहीं होती, डू इट लाइक दिस। हो गया ब्रेक? पढ़ लेते। आपको पता है कि मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के, तो वो करते वक्त कभी क्या होता है, इट ऑब्सक्यूर्स अ स्टार और अ प्लैनेट। ठीक है, ऑब्सक्यूर्स अ स्टार और अ प्लैनेट। मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको, मैं दिखाना नहीं चाहूंगा, खाली बता देता हूँ। चलो, क्या होता है कि सन यहाँ पे एकदम सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, और 9 प्लैनेट्स जो है उसके आसपास आसपास ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट। ठीक है, सन सेंटर में अलग अलग ऑर्बिट में सब कुछ घूम रहा है। सबसे पहले मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस। तो ऐसे करते हैं कि 9 प्लैनेट्स का अलग अलग अपना अपना रास्ता है। अर्थ कम्स ऑन थर्ड ऑर्बिट, ये सिंपल है। तो अर्थ और मून जब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, और ये मून रिवॉल्व कर रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, सेम दैट सिनेरियो क्या होता है, जब कोई प्लैनेट या फिर जब कोई स्टार, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी मून के पीछे छुप जाती है। मून घूम रहा है, अर्थ अर्थ ये है, मून ये है, और ऐसे मून घूम रहा है, और पीछे देखो आप, मर्क्यूरी विनस भी घूम रही है, सन सन इधर है, उसके पीछे मर्क्यूरी फिर विनस, सन, मर्क्यूरी विनस, मून, अर्थ। ओके, जब मून मर्क्यूरी विनस को छुपा देता है, ऑब्सक्योर्स मतलब ओवरटेक कर लेता है उसको, और सन के बीच में सिर्फ एक मुझे धब्बा दिखता है, धब्बा, ठीक है, तो इट इज नोन एज व्हाट? ऑक्यूल्टेशन। ठीक है, while doing so, moon obscures a star or a planet and that celestial body appears to hide behind the moon. मून के पीछे वो क्या हो जाता है, छुप जाता है, कौन? स्टार और प्लैनेट, ऑक्यूल्टेशन के वक्त मून के पीछे छुप जाता है, कौन? स्टार और प्लैनेट, ऑक्यूल्टेशन के वक्त। सिंपल है, ऑक्यूल्टेशन के वक्त क्या होता है, मून के पीछे और मर्क्यूरी वीनस जो है वो छुप जाता है, सन के बीच में आ जाता है। ओके, तो टोटल सोलर एक्लिप्स भी क्या है, इसी का है, ये है, क्योंकि भाई मून के पीछे वो सोलर एक्लिप्स क्या हो जाता है, छुप जाता है, सन छुप जाता है। तो टोटल सोलर एक्लिप्स इज एक्चुअली व्हाट? एग्जांपल ऑफ। अब ट्रांजिट क्या होता है? ट्रांजिट ये होता है कि भाई जब मर्क्यूरी और वीनस, ठीक है, मर्क्यूरी और वीनस आ जाते हैं अर्थ और सन के बीच, इसमें मून का कोई रोल नहीं है, ट्रांजिट में मून डज नॉट प्ले एनी रोल। व्हाट हैपेंस इज, मून साइड में है, ठीक है, बट अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस ऐसे घूम रहे हैं, और सन। तो जब मर्क्यूरी और विनस सन के और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो ये अर्थ, ये सन, और मैं मर्क्यूरी विनस होता हूँ, तो जब मैं ऐसा बीच में आ जाता हूँ और वो थोड़े ही टाइम के लिए होता है, तो वो क्या होता है, ट्रांजिट। तो वो क्या होता है, ट्रांजिट। तो ट्रांजिट इज क्या है, इज अ टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स। तो दोनों ही टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स है, तो ये डब्बे डब्बे पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर, सोलर एक्लिप्स occurs on a new moon day but not on every new moon day। अच्छा, एवरी न्यू मून डे क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने बताया ये ऐसे है और अर्थ ऐसे है, तो बहुत कम टाइम पे वो दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं। ओके, तो सोलर एक्लिप्स हमेशा होगा न्यू मून डे पे ही, ये याद रखना, सोलर एक्लिप्स हमेशा होगा न्यू मून डे, बट नॉट एवरी न्यू मून डे, सम न्यू मून डे। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम प्लेन एंड फॉल इन वन नाइट, जब वो तीनों सेम लाइन में आ जाएंगे, तब क्या होगा भाई, सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स का ड्यूरेशन होता है 7 मिनट 20 सेकंड। अगर आपको देखना है तो 7 मिनट 20 सेकंड में आपको देख लेना है, उसके बाद वो नहीं दिखेगा। okay? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लूनर एक्लिप्स क्या होता है? लूनर एक्लिप्स अगर होना फुल मून डे, भाई कंफ्यूजन मत करो, न्यू मून डे पे सोलर होता है, फुल मून डे पे क्या होता है, लूनर। न्यू मून डे पे सोलर, फुल मून डे पे लूनर, बट हमेशा फुल डे में नहीं होता है। कब? जब सन, मून और अर्थ क्या होगी, सेम प्लेन पे आ जाएंगे और फॉल इन वन लाइन, देन इट इज लूनर एक्लिप्स। तो लूनर एक्लिप्स लंबा चलता है, 107 मिनट्स, ठीक है, 107 मिनट्स। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आप हमेशा याद करते जाना, यू नो, ठीक है। अभी एंड करता हूँ ये लेक्चर।
I hope आपको मजा आया होगा. कुछ भी doubt है, please write it down in the comment section below. I'm trying. I'll take it up your all the questions, your all the queries, your all the doubts in the next lecture. Please, 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 please do like, share, subscribe the video, and pass it on to all.